And so very warm welcome to the entire panel, and can I now invite Mr. Yogesh to please begin with his presentation. Yeah, good morning everyone. So, I can see your presentation. Yeah, thank you so much. I would like to thank the organizers as well as Madam for this opportunity for sharing our experiences on this particular initiative. So I'll be sharing about one of our BIAF's experience. BIAF has multiple programs to address these issues. But one program wherein the crux of addressing land degradation lies into making it remunerative for the communities over there. So we have evolved the Wadi approach, which actually addresses this issue by making it a livelihood option for the communities. So just before going ahead, I would like to introduce BIAF's initiatives. So BIAF, as you all may be aware, was established in 1967, and at present we are operating in 17 states of the country. And the major focus always has been on livelihoods, ensuring sustainable livelihoods to the rural communities. And some of the major approaches we are adopting is mainly farm-based initiatives, livestock-based initiatives through improvement of the breed as well as improvement of the fodder and feeding practices and the healthcare of the animals. And natural resource management, which focuses on improving the natural resources through watershed plus measures. And then in addition to that, we are also involved in several social enterprises, promoting various enterprises that help in social well-being, as well as research and incubation. BIAF lately is also operating an incubation center for startups in Maharashtra. And BIAF's always focus has been on research, so we always call BIAF Development Research Foundation. So development cannot happen without research, because it has to, and research cannot will be outdated without a link to development. So with this approach, BIAF has always been focusing on research activities, and BIAF is on, I guess, the only NGO which operates an AICRP of ICAR, that is a fodder and forage-based research center that BIAF is operating in Urari Kanchan, and lately we have also initiated an AICRP for millets. Then all these BIAF programs are also focusing on climate actions. Most of the programs are contributing to climate change mitigation, and almost all of them are also focusing on climate change adaptation. And women-centric and health are the most important components of all the programs that we are operating. And with this, at present, we are almost touching 4 million families per year through various programs in almost 1 million villages in India. So this is needless to mention that we all are aware about the land degradation issue that the country as well as the world is facing. In India, almost 120 million hectares of land is almost degraded. And also this is leading to several other issues, including loss of agriculture productivity, loss of food security, as well as most importantly environmental issues. Loss of biodiversity and change in the species abundance is a very common issue found due to, again, land degradation. So then addressing this always is an important challenge that we have to take over. And as you all know that under UNCCD, India is targeting 26 million hectares of land to be brought under restoration. And here I will be presenting our experience, like the Wadi experience, through which
we are converting this particular challenge into a great opportunity. So this is just one glimpse how degraded lands can be converted into a productive, sustainable and resilient asset for the communities. And this entire approach has not been a desk work, but it has evolved through community interactions. So it was early during 1980s when the approach was evolved with tribal communities, where BIAF was invited to take up certain activities for ensuring sustainable livelihoods for the communities in South Gujarat. And there we found that the communities had certain pieces of land which were on mountain slopes or under degraded lands which were not used for agriculture. And they were facing a lot of problems due to seasonal cultivation only for consumption, and then followed by distress migration. So then we tried to address this challenge by converting these degraded lands into productive assets. And that was the idea was again brought through the communities because they had interest in mangoes and they were working for some large farmers, and so they were interested in taking up some tree plantation. So then this idea of tree plantation was introduced as it is sloping lands, degraded lands, conventional agriculture would be the right option because that will again add to the degradation. So then we thought of tree plantation initiative. So the Wadi initiative started with just 34 families in 1980s, and now we have reached almost 2.2 lakh families throughout the country. And adding NABARD's numbers, almost 5 lakh families have been benefited under the program. So later on in 1990s, KFW and NABARD came ahead for supporting the crystallized program. Various other components were added in addition to tree plantation, and then it became a very crystallized and holistic approach that was introduced. So I'll come to the various components of Wadi. So basically, as I mentioned, it is tree plantation. So it is a combination of horticulture, that is fruit trees, as well as fruit forestry trees. Again, it is multi-purpose forestry trees that are introduced on around 0.2 to 0.4 hectare of land that is owned by the small and marginal landholders. And as we are working on poor quality lands, degraded lands, soil conservation and water resource development is an integrated component of this program. So various soil conservation measures were introduced based on experiences and practical working that will help in sustaining the trees as well as improving the quality of the soil. And as we were working with very poor marginal farmers, the gestation period of fruit trees, you know that it will be almost 3 to 4 years until the trees actually started to come into fruiting. So then various short gestation livelihood initiatives were woven into it. And after that also we realized that when we scale up the program, as we started with 34 families and then it was scaled up to almost 5,000 families in the period of 6 to 7 years, there was huge market glut of the production of the fruit trees. And so then the farmers had to take care of the marketing aspect of it, or else then they were ended up with cheating from the traders. So then the farmers were organized into farmer produce organizations, and then they were handheld to take up value addition and processing of the produce. So this is a typical model wherein we introduce almost 2 types of fruit trees. And along with that, the fruit trees are actually meant for home consumption as well as for selling the surplus so that it generates a long-term income. So once the trees are there, the soil also starts improving, the erosion of the soil is also getting under control, as well as it also serves as a long-term 30 to 40 years livelihood source for the families. And along the border, a combination of 3 to 4 forestry species is taken up. These forestry species are selected again based on the community's local requirement, the agroclimatic conditions, and it caters to multiple requirements. Like in some areas, it can meet the fuel and fodder requirement of the families. In certain areas, they have some surplus timber that can be sold to act as a financial hedging to the families. And in the interspaces, we promote soil conservation and along with that certain legume crops. So legume crops, you all know that it helps in improving the soils through nitrogen fixation. And later on what we see is due to these particular techniques that have been developed for soil conservation, specifically on very heavy slopes,
the practice of trench cum burn or tree platform has been introduced. So that arrests the erosion of the soil as well as improves or promotes the growth of the trees. And eventually these wastelands or degraded lands are converted into very good quality soils wherein they are now cultivating certain vegetable crops or cash crops, tuber crops. And along with that, to sustain the plantations in the initial 3 to 4 years, certain small scale water resources are developed. Like in some places it can be small farm ponds with plastic lining, some places it can be check dams. So the typical opportunity based on the site is tapped to support the initial years of irrigation. And once after 3 to 4 years the trees are established, they are there for a long period. We have seen that bodies which were established in 1980s, even now they are standing very well. And as I mentioned, we were working with tribal families to begin with, and these families are in a situation of hand to mouth, mainly involved in very low level agriculture, mainly rain fed agriculture, and they depend on seasonal migration for their livelihoods, and then sustaining them to stay in the village and take care of the orchards was a challenge. So then along with tree plantation, certain short gestation livelihood initiatives were required. So again, based on the local situation, based on the market, various short gestation livelihood initiatives, some places it is vegetable cultivation, some places it can be floriculture, these have been introduced. And again, the farmers are taking up collective marketing of this produce so that it ensures sustainable and true value for the produce. And fine. Yeah, and then again, these farmers are organized into FPOs to take up value addition and processing of the produce. So overall, if we look at the outcomes, it is providing a short gestation as well as a long-term livelihood source for the families. And most importantly, the distress migration is checked and also providing some sustainable nutrition source for the families. And if we look at the environmental and the land degradation aspect, all these lands are being restored and there's reversal in the land degradation. And overall, we have seen that these are also acting as a carbon sink. So almost 23 tons of carbon is sequestered per hectare, and out of these 23 tons, almost 6-7 tons is through the soil. So that is an indicator of the soil restoration that is happening. So this is in a way how the WADI program is contributing to various SDGs as well as land restoration. Yeah, thank you. Thank you so much, and my apologies for intervening to rush you in time, but it's exactly 10 minutes that you took. Thank you so much. May I now invite Vamanji to deliberate on his topic. He will be talking about eco-restoration principle and approach, again from BIF. हाँ प्लीज अगर हिंदी थैंक यू मैं चल रहा था तब मैंने ये सोचा पर अभी बोलना नहीं थैंक यू फॉर दैट So good morning and thank you ILAC for this opportunity. So today we are going to the second part of land degradation, which is having the very much importance in the climate change scenario, in the productivity and in the overall livelihood enhancement of the farmer is concerned. So watershed development, water resource development, natural resource management, we can say broadly. So we can talk about this and we can see how BIF and other programs are contributing to reverse the degradation process, to restore the degraded lands and to increase the productivity of the farmers, parallelly along with the building environment conservation. So these are some concerns. सबको मालूम है कि climate change की बात क्या हम करते हैं बहुत सालों से. Why it is happening? Every year हम देख रहे हैं कि if you can see the picture from last from 1850 and onwards, there is increase in temperature. So temperature बढ़ रहा है because of multiple reasons, deforestation, urbanizations, mining, and all other reasons are contributing for increasing temperature. And because of greenhouse gases and increasing temperature, we are facing lot of events like drought, floods, and disasters, and all events are happening.
So that is the concern. ये हर साल हम देख रहे हैं कि राजस्थान and Gujarat, these areas are suffering from floods where water was a scarcity once upon the time, and high rainfall areas are not getting proper rainfall. So the imbalance of the natural events, those are causing due to climate change. And because of this, main important जो target group है, जो हमारे farmers है, सबका impact farmer के ऊपर हो रहा है. So all tribal farmers, poor farmers, those who are residing in the remote areas and restored degraded landscapes, those families are suffering from this, and loss of livelihoods is the main reason. You can see the pictures also. थर्ड इम्पोर्टेंट पैरामीटर इज ग्राउंड वाटर डिप्लीशन. सो सभी स्टेट में अगर हम देखते हैं तो भूजल का स्तर एवरी ईयर नीचे नीचे जा रहा है बिकॉज ऑफ अर्जेंट नीड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड ऑल दैट. सो शैलो एक्वीफर्स की जो हम बात करते हैं जिसमें डगवेल से पानी लेते थे, दैट हैज बीन कंप्लीटली एग्जॉस्टेड. तो अभी शैलो एक्वीफर में पानी ही नहीं है. सो पीपल आर गोइंग 500 फीट, 600 फीट, 1000 feet and extracting groundwater just like anything. You can see the picture. Every year groundwater draft is increased, and this is also very causing a serious problem because we are completely exhausted the groundwater from deep aquifers, and these empty aquifers will be carried forward for the next generation. And if drought will be there, if rainfall is not there, then there will be a big disaster. How to manage with the water? So this is very alarming situation. You can see in the maps also. So red spots in the areas of northern region where groundwater is completely exhausted, and there is no, according to the availability of recharge measures are not taken care of. So this is one of the major concerns. Causes of land degradation सबको मालूम है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि there are multiple reasons है जिसमें water and wind erosion every year जब बारिश आती है और अगर जमीन के ऊपर क्रॉप्स नहीं है, ग्रास नहीं है, पेड़ नहीं है, if land is open, then every year majority of soil, top layer of soil is moving along with the runoff. जो हमें दिखता है और कभी हमें उसके ऊपर हम गौर नहीं करते. But that important top layer of soil is moving away with the runoff event every year. And अगर एवरेज हम बात करते हैं इंडिया की, तो 16 tons of soil per hectare लॉस उसका होता है खेतों में से, वेस्टलैंड में से, जो आइदर डैम में जाके शिफ्ट होता है और आइदर वो सी में जाके मिलता है, विच कैनॉट बैक फ्रॉम द सोर्स. एंड उसके रिवर्स अगर हम बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ 1 inch लेयर ऑफ सॉइल, इट टुक अराउंड 1000 years. So soil formation rate is very very slow, whereas soil loss is very much faster. So how to reduce that erosion process, how to control soil erosion process, so that top layer of the soil can be conserved in the field, conserved in the landscape, conserved in the forest catchment, so that that can be a base for vegetation, for production, and for multiple purpose. Because without soil and water, nothing can happen. So they are the strong base of the natural resources. And if soil is not there, then there will be no moisture conservation, there will be no water recharge. So in that way, this is most important. And because of this, soil nutrition का depletion हो रहा है, जमीन में organic carbon कम हो रहा है. We are talking from last 2 days. ऑर्गेनिक कार्बन का जो लेवल है कंटिन्यूसली डाउन हो रहा है. डिफोरेस्टेशन है, माइनिंग है, कुछ जगह पे ओवर इरिगेशन के कारण सैलिनाइजेशन हो रहा है. सो जो कमांड एरिया है वहाँ पे फ्लड इरिगेशन है, हरियाणा, पंजाब, in Maharashtra, in dam catchment area where flood irrigation is practiced and single crops are cultivated, there we are facing the problem of salinization and alkalizations. So in totality, these all efforts are contributing towards the degradation. तो वो क्या करे कि लैंड का प्रोडक्टिविटी कम कर रहे हैं. एनी रीजन कुड बी एनी वन, बट द रिजल्ट इज लैंड का प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है. एंड दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट कॉज वी नीड टू सी हाउ टू ओवरकम दिस. सो इसमें जो डिफिनेशन दिया है, जो वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हम बात करते हैं, द कैपेसिटी ऑफ द लैंड टू प्रोड्यूस द गुड्स फॉर द सिस्टम, वो कम हो रहा है. तो उसी के ऊपर हमें काम करना है. So BIAF contribution already Yogesh mentioned about, so I'm not going into the detail. We are having programs on land degradation neutrality, agroforestry, plantation, climate resilient agriculture, and renewable energy. All the programs are very well aligned with the natural resource management and climate action, जिसके कारण हम conservation में इसका मदद होता है. And next to that,
जो थर्मल इमिशन की बात हो रही है, जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन की बात हो रही है, वो कम करने के लिए यूज ऑफ सोलर एनर्जी, यूज ऑफ बायोगैस एनर्जी, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज प्रमोटेड in the rural catchment, in the rural community, so that it can start from the ground and goes up to the higher level. So these are the basic approach of BIOF. So we are focusing on integrating traditional and scientific knowledge. तो जो किसानों के पास ज्ञान है, कंजर्वेशन का है, वाटर रिचार्ज का है, इरिगेशन का है, कुछ जो ओल्ड वैरायटीज है उसको कंजर्वेशन करने का है. So we are always focusing on the traditional knowledge of the farmers, how to conserve that knowledge, how to revive that technology, how to validate that technology on ground. That is the main focus of BIOF. So ये हम ध्यान देते हैं. उसी के साथ scientific knowledge के साथ भी उसको अपग्रेडेशन किया जाता है. When we are talking about the groundwater recharge, we are going with the geohydrological assessment. जब तक हम भूगर्भ को नहीं देखेंगे, जियोलॉजी नहीं देखेंगे, रॉक का पैटर्न कौन सा है नहीं देखेंगे, फ्रैक्चर्स कहाँ है नहीं देखेंगे, वी कांट प्लान ऑप्टिमम रिचार्ज मेजर्स. सो ये भी हम ध्यान देते हैं कि साइंटिफिक एंड ट्रेडिशनल नॉलेज का कॉम्बिनेशन हो. रीजन स्पेसिफिक इंटरवेंशंस इज द की, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री. सो इंटरवेंशंस planned for the Rajasthan and Gujarat are not suitable for the south region. Interventions of Himalayan regions are not suitable for the other regions. So considering the land's slope, rainfall, soil depth and overall climate, we are planning our interventions so that can be very well suited to that agroecological zone and that can address the problem of the rural community. So ये सबसे इम्पोर्टेंट है. लोकल इज द की. हम 2 दिन से यही बात कर रहे हैं. लोकल इज द की, लोकल शुड बी वोकल, लोकल इज द सॉल्यूशन. सो ये इसमें बहुत बड़ी मात्रा पे हम फोकस करते हैं. जैसे योगेश ने अभी एग्जांपल दिया कि जो डिग्रेडेड लैंडस्केप्स हैं और जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, दे आर वेरी क्लोज टू द नेचर. तो वहाँ बाड़ी का सक्सेस बहुत ज़्यादा मिला, बिकॉज राइट प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन हुआ एंड दे हैव टेकन केयर ऑफ द बाड़ी, दे हैव रिस्टोर्ड द लैंड्स और अभी उनको उनका फल मिल रहा है. एंड सबसे इम्पोर्टेंट है जो डिग्रेडेड वेस्टलैंड्स है वो रिकवर हो रहे हैं. देन क्लाइमेट प्रूफिंग एंड ये इंटरवेंशन भी हम करते हैं कि आफ्टर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, community need to be oriented for the crop planning, water budgeting, other aspects can be taken care of. Capacity building, behavioral change is the continuous process. So we are always focusing on the continuous capacity building of the farmers, watershed committees, water user groups and all these measures. So इसमें land use planning is important tool है restoration में, जिसमें हम ये सब बातों के ऊपर ध्यान देते हैं कि land capability classification के ऊपर फोकस किया जाता है. तो what is the capacity of the land to grow? If land is having the capacity of growing forest, then forest will be the right option. If land is having good soil depth, minimum soil erosion, so that land will be capable of growing a good quality of plants or horticulture. So land का जो क्वालिटी है उसके अनुसार हम प्लान करते हैं. और इसमें सब प्रैक्टिसेस हम फॉलो करते हैं. क्रॉप रोटेशन है, देन ऑर्गेनिक फार्मिंग है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, फार्म बंडिंग है, सीसीटी है, स्टोन बंड है, मैकेनिकल मेजर्स है, कुछ बायोलॉजिकल मेजर्स है. सो बाय ऑल मीन्स वी आर planning to control soil erosion from ridge to valley, from top to bottom, so that entire landscape can get resilience for the degradation. ये बायोफ का अप्रोच है. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल. बेसलाइन असेसमेंट एंड कम्युनिटी के साथ बात करके हर खेत में जाके हम प्लान करते हैं, जिसको नेट प्लानिंग प्रोसेस बोलते हैं. एंड आफ्टर हैविंग ऑल दीज डिटेल्स वी आर डेवलपिंग अ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड दैट प्लान इज एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 3 to 5 years एंड आफ्टर आवर प्रोजेक्ट इज हैंड ओवर टू द कम्युनिटी. सो ये अभी ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं हम लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी. इसमें 3 ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं: अवॉइड, रेड्यूस एंड रिस्टोर. सो जहाँ डिग्रेडेशन नहीं है वहाँ हमें अवॉइड के प्रिंसिपल पे जाना है. हमें कम्युनिटी को अवेयर करना है कि वी नीड टू अवॉइड एक्स वाई जेड. ये करेंगे तो अवॉइड हो जाएगा. जहाँ ऑलरेडी डिग्रेडेशन स्टार्ट हुआ है वहाँ हमें रिड्यूस करना है उसको. So by planning mechanical measures, by planning watershed measures, by planning soil conservation measures, we need to reduce. Or those who are already degraded, we need to restore. So Deepaji and all other colleagues will talk upon that, eco-restoration principles and different measures of that. So avoid, reduce and restore. These are the key principles of land degradation neutrality. And इस तीन principle के आधार पे we are planning the programs. So this is the overall landscape and catchment management program. Till now we have covered more than 3 lakh hectares in India, and these lands have been restored with various measures of soil and water conservation. You can see in the picture, so water is available, soil is conserved, vegetation will be there, and overall
resources restored. Region specific models की बात करते हैं तो in Karnataka we have developed the networking of farm pond where small water bodies is a tradition of their farming community. So we have collectively organized that all farm ponds through common waterways, and that have been a good model for Karnataka. In Rajasthan we have developed community pasture lands where silvopasture practice is promoted, and they are getting good fodder and institutional conservation. So in Maharashtra, diversion based irrigation for the tribal communities. In Gujarat, aquifer recharge, जो हम बात कर रहे हैं कि जमीन के नीचे का पानी हमें रिचार्ज करना है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, स्प्रिंग शेड के लिए भी हम काम कर रहे हैं. In Gadchiroli and eastern Maharashtra, body based farming system is also promoted. वहाँ ट्रेडिशन था कि खेत के एक कॉर्नर में लोग पानी को इकट्ठा करके they are using for the agriculture. So that body project we have revived, and now NABARD has approved this program for upscalation. So this desiltation of body, repair of body helps to store the more water, then their fishery can be grown. Then along with that we can promote duckery, then a small plot of horticulture, then trellis and vegetables. You can see very good circularity is maintained for a single body. So now a single body is getting a good income of around 1.5 lakh to 2 lakh to the farming community. Water stewardship programs are there which are focusing on the irrigation water management and climate smart village and all. And this is overall a data set of BIAF for contributing the climate change resilience and degradation. And these are key outcomes. Because of this, we can control soil erosion, we can conserve soil, we can help to increase the carbon sequestration in the land, and we are contributing to the global climate change goals and net zero emissions through our different initiatives. So thank you. I think now we can sit here. Vamanji, thank you so much, and once again apologies for making you wind up this interesting presentation. May I now request Deepaji to begin with your deliberation on the nature-based solution as an approach to restoration. My humble request to limit to 10 minutes. Thank you. And can I also invite the other presenters, because now there is no presentation, so panelists, if you can please join here, that would be wonderful. Yeah, Deepaji, over to you. Sorry, I don't have a presentation right now, so I just speak on whatever Vamanji has continued and how GS has been involved in the nature-based solutions. Now, most of the thing already is told why restoration is important, how the things are being done, and what are the benefits out of it. So, even in nature-based solution, our primary aim is we look at the local community, the knowledge which is there in the local community, the landscape which we are restoring. So, here the main idea is the water, soil, and the local communities. The three need to be integrated to get a success. And some You're muted, Deepaji. You're muted. If you would like to unmute yourself, sorry. Thanks. So one of our good example is light mine restoration at Panel Road. Now the challenges over here was very different. Here the soil was acidic. The moment we tried to do any restoration or any plantation, it was failing. So here came a challenge, and then we took note of the local grass species. So now the area had acidic grass species or the which were tolerant to that area. Those were planted, and also soil restoration project or soil fertility improvement programs were done. Wherein we took of the common, like you have the cow manure or the naturally available organic manure was taken, and no inorganic fertilizers were added. And with this simple landscape or nature-based solutions, the restoration efforts were very high, and within third year, we could get a diversity indices, like species which were there before the restoration were only 14, and we could reach to 100. So 100 was a
only in terms of floral species. And then the dependence on other dependent species, the insects, the wildlife. And by the third year, we could get a complete food web. In fact, the predators, the fox, the higher predator of that area was also visible. So a nature-based approach is always a better thing, wherein the nature and the species which are adapted. The second which we had done was a Buneri restoration. Now Buneri was another challenging site which is at Lakhpat. You can know it's on the westernmost part of India and the salinity is very high in that area. Now the community was facing the issues of Prosopis invasion, they are livestock, they are the Malharis and the livestock raiding is a major occupation. Being on the western side, the agricultural economy is not there, hardly they get a rain-fed economy. Or agriculture just on the rest of the 9 months are totally on pastoralism. So now they're grasslands, so the open grasslands, they had a huge open grassland, but they were infested with Prosopis juliflora. So then we talk with the community and first intervention in nature-based solution is with the community. We need to open up with the community and ask them which is the problem and the area. They identified the site. If this site needs to be improved, then we took that area, so 4 hectares initially because challenges were there. So we have tried a 4 hectare area and then we divided that area, then they expanded that area into 10 hectares. They said, no, we take up 10 hectares. Then out of 10 hectares, we restricted our program in 4 hectares. We said we need to improve the grassland. Now, Lakhpat was known for grasslands. In fact, it is a continuation of the bunny belt. So you can know the bunny has a good 32 species, grass species which are endemic to the region Queen. So certainly Lakhpat had vanished and the area was taken over by Prosopis. When we talked with the community was really helpful and they said, yes, we will dedicate a small part of the land totally for grassland seeding. Okay, so we removed the Prosopis from that area and we had done small water management as Vamanji has suggested. So because that area was small, stone bundling was sufficient to control or take the annual rainfall. And the annual rainfall in the region is only 250 mm. So we have to only tap that water and improve the soil moisture conservation steps. Then when the soil moisture improved and we took the grass. Now the grass seeding was very difficult in that area. So we took the help of Kazri Jodhpur, identified the common species. They had a good number of local native species. So we took those grass species and in that 4 hectare of area, we talked with the community. See, now we are going for the grass seeding. So we don't want any livestock intervention. Once the seeds are picked up, then certainly the area will be open for you people. So then the agri-quick fencing was done only for a smaller area. Then in the first year, we raised the grass seeds in that controlled mechanism. And it was totally the species which are native and adapted to the Buneri or Lakhpat area. In the second year, then other areas which were a broader area, we cleared the Prosopis were removed and this grass was again sprayed. The seed was sprayed in that entire area with cow dung because there are Malharis. दीपा जी सॉरी मैं बोलना भूल गई पर इन्होंने जो वापस याद करा था जहाँ तक हो सके अगर थोड़ा हिंदी भी यूज़ करेंगे तो डाइवर्स ग्रुप है सॉरी थैंक यू तो जो मालहारीज थे उन लोगों का भी एक उनका साहर बहुत इम्पोर्टेंट था दे केम अप विद दैट एरिया ठीक है कि हम आप लोगों को ये एरिया देते हैं फिर सेकेंड ईयर जब हमारा फर्स्ट ईयर का घास जब ग्रास सीड्स जब आया तो हमने दूसरे एरिया पे ब्रॉडर एरिया पे हमने उसको स्प्रे किया सो वो एफर्ट्स कंटिन्यूड एंड लोकल कम्युनिटी जो मालहारीज थे उन्होंने इतनी अच्छी हमें लाइक उन्होंने कितना सारा कोऑपरेशन दिया है जब भी हम फील्ड पे जाते थे और हमें उनको ट्रेनिंग देते कि आप हमें ग्रास सीड्स ऐसे कलेक्ट कीजिए तो जो मालधारी जो बकरियां चराते थे उन लोग भी इस ग्रास सीड्स को कलेक्ट कर लेते थे सीड्स को और जैसे कि बारिश आया नेक्स्ट ईयर जब बारिश आया उनको इतना नेचर के साथ इतने जुड़े हुए उनको पता है कब हमें सीडिंग करना है तो फर्स्ट रेन को तो वो छोड़ ही देते थे सेकेंड रेन जब आया मतलब फर्स्ट जब इंटेंस रेन होता है तब वो नहीं करते 10 दिन के बाद उन्होंने सोइंग किया
एंड एफर्ट्स कंटिन्यू। तो लोगों को भी ट्रेन हो गए थे, उनको एक मॉडल इतना अच्छा लगा, उन्होंने बोला हम बाकी एरिया खुद ही अपने से करते हैं। सो थर्ड से फोर्थ ईयर तक वो इतना सक्सेस हो गया कि उन्होंने खुद ही प्रोसोपिस रिमूव किया एंड देन दे स्टार्टेड द प्रोसेस ऑन देयर ओन। बट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस एंटायर वाज प्रोसोपिस जो हम रिमूव करते आ रहे थे, गांडा पावर को जो रिमूव कर रहे थे, धीरे धीरे वहां से बेर आना शुरू हो गया। सो द लोकल्स वर एक्साइटेड, अरे बेर तो हमारे यहाँ था ही, पहले हम बचपन में बेर खाते थे, पर जब ये गांडा बावल आ गया तो बेर तो निकल ही गए। सो उन्हें वो समझ में आया कि ये जो साइकिल था, डिग्रेडेशन का जो साइकिल था, वो ब्रेक हो गया था। एंड एक बार ये साइकिल आ गया, मतलब अभी अगर हमारे पास बेर आ गया तो अभी नो गांडा बावल आएगा ही नहीं। सो उनको एक साहस मिला। सो ये एक सक्सेस स्टोरी था। और बुनेरी का एक और इम्पोर्टेंट बात है, दे आर इनलैंड मैंग्रोव्स, चेरिया के पेड़ है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो मालधारीज पहले चेरिया के ऊपर जाके अपना लाइवस्टॉक जो है, जब समर्स में उनको इश्यूज आती थी फॉडर की, तो चेरिया के अपना घास चारा और मतलब फीडिंग करते थे उसके पत्तों का। पर जब ये घास का मॉडल आ गया तो चेरिया कंजर्वेशन आ गया एंड अभी ऐसा है कि उस चेरिया को BHS डिक्लेयर किया है, बुनेरी बायोडायवर्सिटी की हेरिटेज साइट फॉर इनलैंड मैंग्रोव, गुजरात गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। सो इसका जो बैकग्राउंड है कि हमें चेरिया को इनडायरेक्ट गया है, ओके, हमने यहाँ पे फॉडर डेवलप किया पर फाइनली बेनिफिटेड इकोसिस्टम को हो गया है, पूरा बुनेरी विलेज को हुआ है। और एक थर्ड एग्जांपल मैं बताना चाहूंगी, कंक्लूडिंग टुवर्ड्स प्लीज, थैंक यू, टुवर्ड्स कंक्लूडिंग प्लीज, क्योंकि ये वेटलैंड कंजर्वेशन पे हम काम कर रहे थे, तो जहाँ पे इरोजन प्रॉब्लम था और हमें पता है कि आजकल जो वेटलैंड्स है सारे कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहे थे, सो वी वर लुकिंग, हमें नेचर के सॉल्यूशन पे जाना चाह रहे थे, तो हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वेटिवर ग्रास प्लांटेशन किया है। ओके, तो एक साल के अंदर अभी हम जब गए लास्ट ईयर अक्टूबर में प्लांटेशन था, इस बार प्लांटेशन में तो वाटर क्वालिटी इंप्रूव हो गया। हमें भी सरप्राइजिंग लगा TSS, द टोटल सस्पेंडेड सॉलिड जीरो, पानी क्रिस्टल क्लियर हो गया और इरोजन रुक गया। प्लस जो फिशिंग कम्युनिटी था, उनका जो फिश प्रोडक्शन है, वहाँ पे वो फिशिंग भी करते हैं, तो पहले उसको मतलब जो 700 ग्राम्स का फिश मिलता था, आज उसको 1 किलो का एक फिश का मिल जा रहा है। सो वो सर्टेनली उसके लाइवलीहुड और इनकम जनरेशन में मदद की है। सो ये 3 इंटरवेंशंस थे। मेरे पास स्लाइड्स नहीं थी, नहीं तो फिर और भी मजा आता है, क्योंकि बस ग्रीन जो दिखने को मिलता है रेस्टोरेशन के बाद, उसका आनंद भी कुछ अलग ही होता है। थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। Thank you so much, Geeta ji, for this sharing your wonderful examples. बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल है और प्रेजेंटेशन नहीं था, उसकी कमी बिल्कुल भी नहीं थी, बिकॉज आपकी जो बात थी वो इतनी इंटरेस्टिंग थी और इतनी रिलेवेंट थी कि बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। अरुणा जी, कैन आई कम टू यू फॉर योर डेलिब्रेशंस? थैंक यू। जहाँ तक हो सके अगेन अगर हिंदी में करते हैं तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। जानकी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे ऑनलाइन जुड़ने का मौका मिल पाया आप लोगों से, और जो फिर पैनलिस्ट हैं उनकी बातें सुनकर आई एम ऑल्सो वेरी वेरी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स दैट वी वुड लाइक टू ब्रिंग टू दिस ऑडियंस। मैं 3 चीज़ों पे फोकस करना चाह रही थी और जो अभी हमारे साथियों ने बातचीत की है उसके ऊपर इसको बिल्ड करना चाह रही थी कॉन्वर्सेशन को। ताइफ ने और गीता जी ने बहुत अच्छे से शेयर किया कि प्रैक्टिस लेवल पे क्या इमर्जिंग मॉडल्स हैं जिनको देख के हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं कि लोकली लेड जो सॉल्यूशंस हैं, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, उनको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं। जो 3 पॉइंट्स मैं आपके समक्ष रखना चाह रही हूँ वो है, एक तो पॉलिसी लेवल क्या चैलेंजेस हैं, चाहे हम गवर्नमेंट के फ्लैगशिप स्कीम्स देखें, एलोकेशंस देखें या मोडस ऑपरेंडी देखें काम करने का। दूसरा, एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और तीसरा व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसिंग, तो फाइनेंसिंग में हमारे क्या चैलेंजेस हैं। भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन एक ऑटोनॉमस सोसाइटी का है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था 2013 में,
हमारा पेरेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। आज के डेट में हम काफ़ी काम कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, LOECC और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ भी अपार्ट फ्रॉम। जहाँ तक पॉलिसी की बात है, जो हमारा DRLF का मॉडल है उसमें दो प्रमुख बातें सामने निकल के आती हैं। एक कि जो हमारे आदिवासी क्षेत्र वहाँ पे अगर हम कोई भी डेवलपमेंट इंडिकेटर्स देखते हैं तो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स का परफॉर्मेंस काफ़ी लो है इन कंपैरिजन टू अदर एरियाज। दूसरी चीज़ जो बहुत अच्छे से निकल के आती है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमने सुना अपने साथियों को अभी, पर जहाँ तक गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी के पार्टनरशिप की बात करते हैं वहाँ पे खास करके छोटी संस्थाएं आज भी बहुत स्ट्रगल करती हैं सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए। तो पॉलिसी पर्सपेक्टिव से इन दो चीज़ों को हम कैसे ब्रिज कर सकते ताकि हमारा ग्राउंड पे जो काम हो रहा है उसमें जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो फंडिंग ग्रुप्स हैं, चाहे वो सरकार है, CSOs हैं, वो साथ में मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। ये पहला प्रेमाइस था DRLF का एस्टैब्लिशमेंट का, ताकि ट्राइबल एरियाज में ऐसे मॉडल्स निकल के आए जो कि आगे बढ़ सके। बिल्डिंग ऑन योगेश जी's मॉडल जिसमें हमने गाड़ी के माध्यम से देखा था, लार्जली जो प्रेमाइस था वो दो प्रेमाइसेस थे। एक कि लैंडस्केप बेस्ड अप्रोच हमारे लिए बहुत क्रिटिकल होता है क्योंकि उनके तौर पर फिर उस एरिया को देखना शुरू करते हैं। और दूसरी चीज जो बहुत उन्होंने सटीक बोला वो था कि जब हम एसेट क्रिएशन की बात करते हैं तो हम सस्टेनेबल प्रोडक्टिव एसेट्स की बात कैसे करें, जिसमें ना कि सिर्फ इकोलॉजी की बात समझ हमारे सामने आए, पर इक्विटी और इकोनॉमी भी उसमें हम कैसे ब्लेंड इन कर रहे हैं। तो इसमें मैं उदाहरण के तौर पे GPDP उठाऊंगी। अब GPDP में जो हमारी प्लानिंग होती है उसमें हम बोलते हैं कि कैसे हम जो हमारा गांव के स्तर पर प्लानिंग हो रहा है उसको हम काफ़ी इफेक्टिव बना सकें। हमने लोकली लेड स्ट्रैटेजीज की भी बात की, तो इसलिए गांव के स्तर पर ये प्लानिंग काफ़ी क्रिटिकल है अगर आज के डेट में हम बात कर रहे हैं रेस्टोरेशन एफर्ट्स की। एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है कि जब DRLF और उनके पार्टनर्स किसी भी एरिया में काम करना शुरू करते हैं तो हमारे लिए क्रिटिकल होता है कि हम फैसिलिटेशन कॉस्ट तो DRLF के बाद से जाता है CSOs के प्रति, पर जो हमारा काम होता है जमीन पे वो हम गवर्नमेंट स्कीम्स को भी लेवरेज कर रहे हैं। तो चाहे वो MGNREGA हो, चाहे वो PMKSY हो या फिर बाकी प्रोग्राम्स जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हो, उनको लेवरेज करके ही हम आगे बढ़ रहे हैं। पर ये जो प्लानिंग प्रोसेस है उसमें जो लैंड यूजर और कल्टिवेटर्स की रजिस्ट्री है वो जब तक हम इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक में जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत सारे कैटेगरी के लोगों को नहीं मिल पाता। तो टेन्योरल एंड रेस्टोरेशन प्लानिंग दोनों को साथ में लेके चलने के लिए जो प्लानिंग का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, जो प्रोसेस है, वो निकालना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो GPDP में अगर एक स्टैंडर्ड एनेक्स होता है जो कि हमें एक लिस्ट देता कि यहाँ के कितने जो ओनर्स हैं वो कौन से पट्टा के लैंड के ओनर्स हैं, जो टेनेंट्स हैं वो किधर हैं, जो शेयर क्राफ्टर्स हैं वो किधर हैं और जो कल्टिवेटर्स हैं वो किधर हैं, तो हमारी प्लानिंग जो होती वो उसी हिसाब से एलोकेशंस भी हो सकते थे। इसको सॉल्व करने के लिए जब हम DRLF की तरफ से मनरेगा का या PMKSY का कोई भी प्लानिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हम वाटरशेड अप्रोच के माध्यम से इंडिविजुअल और कॉमन्स की प्लानिंग दोनों को बहुत ही सटीक तरीके से पूरा लिस्ट बनता है एज टू हू ओन्स द लैंड एंड हू इज फार्मिंग द लैंड एंड हू इज टेकिंग केयर ऑफ द फॉरेस्ट। इसको फिर हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं GPDP के साथ, तो वहाँ पे हमारा जो लाइसनिंग है वो बहुत क्लियरली डॉक्यूमेंटेड होता है। एसेट क्रिएशन जो होता है वो वाटरशेड प्रिंसिपल्स पे होता है, तो उनकी जो वायबिलिटी है, टेक्निकल स्ट्रेंथ है वो हायर आता है।
और इसको हम लेयर करते हैं लाइवलीहुड एक्टिविटीज में, जैसे वायक ने शेयर किया था कि हम कैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स हो या फिर गाड़ी अप्रोच हो या फिर और भी मॉडल्स हैं जिनको हम अपने प्रोडक्टिव एसेट्स पे लेयर कर सकते हैं। चैलेंजेस कहाँ आते हैं? एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि पीएम के एलोकेशंस देखें तो उसको यूज करने में अक्रॉस इंडिया काफी चैलेंज है। एलोकेशंस यूज नहीं हो पा रहे हैं पूरे। तो अभी भी हमारे पास अगर देखें तो पीएमकेएसवाई में 4.95 मिलियन हेक्टेयर्स का एक टारगेट उन्होंने रखा हुआ है, जिसको अगर हम मीट कर लेंगे तो हमारी आगे की बात काफी इजी हो जाएगी। Aruna ji, sorry, towards concluding, please, last minute. तो अगर हम पीएमकेएसवाई और मनरेगा को साथ में लेके चल सके, जहाँ पे हम मनरेगा के थ्रू बोल रहे हैं प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएशन का, और पीएमकेएसवाई जैसे टैक्स स्कीम्स के तौर पे लाइवलीहुड की लेयरिंग है, जहाँ पे हम लॉन्ग टर्म प्लांटेशंस की बात करें या फिर माइक्रो प्लानिंग जो कि इफेक्टिव हो उसकी बात करें, तो वहाँ पे सोल्यूशंस निकल के आते हैं। इंस्टीट्यूशनल गैप्स जो हैं वो बहुत क्रिटिकल हैं। हमने टेन्योर के गैप की बात की, आज के डेट में आईएफआर या सीएफआर लैंड पे क्या हो रहा है, टेनेंट्स के लैंड पे क्या हो रहा है, इनके रिकॉर्ड्स यूजुअली नहीं मिल पाते हैं हमें वहाँ के स्तर पे। इसके कारण से ही जीपीडीपी या बाकी जो स्कीम्स की कन्वर्जेंस एक्टिविटीज है वो सफल कर जाती है। तो अगर हम इन गैप्स को इंस्टीट्यूशनली फिल इन कर सकें, और इंस्टीट्यूशनली फिल करने के लिए रिवाइवल ऑफ ग्राम सभा एक क्रिटिकल स्टेप है, जो कि जहाँ पे भी हम गए हैं, खास करके आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ पे नया काम शुरू कर रहे हैं, ग्राम सभा का रिवाइवल हैज बीन अ की स्टेप। इनफैक्ट अगर हम जाते हैं तो हम सबसे पहले पूछते हैं ग्राम सभा की मीटिंग हो रही है कि नहीं लगी है, और फिर वहाँ पे प्लानिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। ये दो चीजें अगर हम करते हैं तो हमारा प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क बहुत ही स्ट्रीमलाइन हो जाता है। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वर्क के लिए 3 क्राइटेरियाज जो कि बहुत क्रिटिकल है, जो हम फॉलो करते आ रहे हैं बीआरएलएफ में। पहला है रिच टू वैल्यू, व्हिच एवरीबॉडी हैज टॉक्ड अबाउट। दूसरा है कॉमन्स फर्स्ट, क्योंकि कॉमन्स के थ्रू जो बेनिफिट्स है वो सबसे ज्यादा लोगों को मिल पाता है। और तीसरा है कि जो मोस्ट वल्नरेबल हाउसहोल्ड उसको सबसे पहले स्कीम का बेनिफिट मिलना चाहिए। ये 3 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, चाहे वो मनरेगा की प्लानिंग हो, पीएमकेएसवाई की प्लानिंग हो या कोई भी और स्कीम को हम पिक कर रहे हैं, ग्राम सभा में डिसीजंस इन 3 प्रायोरिटीज के बेसिस पे हो रही है आज के डेट में, जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट विच इज ऑन फिस्कल ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी। लोकली लेड अडैप्टेशन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अनटाइड फंड्स। अगर अनटाइड फंड्स नहीं होंगे तो हमारे लोकल लेवल पे जो हम इतने क्रिएटिव अप्रोचेस की बात कर रहे हैं वो निकल के आ ही नहीं सकते। चैलेंज ये है कि आज के डेट में अगर हम अनटाइड फंड्स देखें काफी लिमिटेड हैं। इवन 40% जो 15 कमीशन के प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत मुहैया कराया जाता है, उसमें भी बहुत सारे स्टेट्स ने बहुत सारे लिमिटेशंस लगा दिए कि आप इन एक्टिविटीज में यूज कीजिए या इन एक्टिविटीज में यूज करिए। तो सवाल ये है कि अनटाइड फंड्स पर लोकली लेड अप्रोचेस हैं कहाँ? हम तो बात कर रहे हैं मॉडर्न कल्चर में, जहाँ पे आपके स्कीम्स टाइड है, बेनिफिट्स टाइड है, प्लान्स टाइड है, एक्टिविटीज टाइड है। तो इन क्रिएटिव अप्रोचेस के लिए फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी इज वन ऑफ द की एंगल्स ऑन व्हिच वी आर ट्राइंग टू वर्क इन द ज्योग्राफीज वेयर वी आर वर्किंग। आई विल स्टॉप हियर। Happy to elaborate more on questions. Thank you Aruna ji for this. And अभी ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं सुमन जी को बोलूँगी। मिस्टर सुमन राठौर, आप अपना डेलिब्रेशन करेंगे। धन्यवाद, यहाँ मौका मिला दिया। अभी जो डिस्कशन हो रही है वो टेक्निकल है, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट पॉलिसी 2-3 दिन से चल रही है डिस्कशन, तो अलग अलग मुद्दे पे हुई होगी डिस्कशन। लेकिन जब मैं सोचता हूँ और कम्युनिटी से बात करता हूँ तो ये लगता है कि बेसिक मुद्दा है कि ज़मीन से हम ज़्यादा दूर चले गए। ये बेसिक मुद्दा है जो हमारे जीवन में
सॉइल का या तो मिट्टी का जो रोल था वो इतना अहम था, उससे बहुत दूर चला गया है। ये बेसिक मुद्दा है, वहाँ से मैं शुरू करूँगा। कहीं पे मैंने सुना था ऑर्गेनिक फार्मिंग के कोई बुक में कि खेत के लिए खाद कौन सी अच्छी है, तो वहाँ लिखा था कि किसान का पैर वो खेत में उसकी फुटप्रिंट डेली पड़े, वो खेत के लिए सबसे अच्छा खाद है। मीन्स किसान डेली खेत में जाए, वो अगर जाएगा तो अपनी जमीन के बारे में सोचेगा। तो वो बात इतनी सही लगती है मुझे याद है अखात्रीज के दिन में जमीन सॉइल की पूजा करने के लिए एवरी ईयर जाता था जब गांव में रहता था तब, और बाद में ही हल चलता था, खुदाई होती थी, उसको सोइंग जो सीड सोइंग होता था वो बाद में होता था, लेकिन अखात्रीज के दिन तो पूजा होती ही थी। अब मिट्टी खा के बड़े हुए हैं, आज तो बच्चों को जमीन जो पैर है वो मिट्टी पे रहते ही नहीं है, लेकिन मिट्टी खा के बड़े हुए हैं, वो एक सही है। मिट्टी में खेलते थे, साबुन नहीं थे पहले, मिट्टी से कपड़े धोते थे, साबुन नहीं थे, मिट्टी से नहाते थे, वो भी सही है। कोई अगर इंसेक्ट का बाइट हो जाता था तो मिट्टी से ही उनका समाधान हो जाता था। मिट्टी थेरापी बहुत चलती थी, कॉन्स्टिपेशन होता था तब मिट्टी से ही वो सब प्रॉब्लम सॉल्व होता था। जब कसम खाते थे तो लोग मिट्टी हाथ में लेकर कसम खाते थे, उतना विश्वास था। मिट्टी को केवल संसाधन नहीं मानते थे, एसिड नहीं मानते थे, लेकिन कुछ अलग ही मिट्टी से जुड़ा था। घर बनाने में मिट्टी, व्हाइट वॉश में अलग अलग टाइप की मिट्टी का यूज होता था। और जब हम लोक भर्ती में मैं पढ़ता था, ग्रेजुएट मैंने किया, मास्टर किया, तो यूरिया डीएपी इतना नहीं था गांव में। हम सैंपल लेकर जाते थे तो मना कर देते थे कि नहीं ये जहर है, हम नहीं डालेंगे। अगर मेल था घर पे तो बोलते थे कि वो फीमेल आने के बाद हम डिस्कशन करके बात तय करेंगे कि डालना है कि नहीं डालना। फीमेल घर पे थी तो वो बोलते थे कि मेल आने के बाद हम डिस्कशन करेंगे, बाद में डालेंगे। तो अभी ये नहीं लेंगे हम, बाद में 2 बार 3 बार उनके घर पे जाना पड़ता था तब वो लेती थी। वो जमाना था, मिट्टी को केवल एसेट या तो संसाधन नहीं मानते थे। और सॉइल हेल्थ के पैरामीटर्स कम्युनिटी के बहुत अलग थे। वो बोल रहे थे कि उसमें खुशबू आनी चाहिए, वो हमारी जमीन है अच्छी, हम हाथ से खुदाई कर सके, वो अच्छी जमीन है। उनके पैरामीटर्स बहुत अलग थे। और अगर हम चले तो फुटप्रिंट छप जानी चाहिए खेत में, वो अच्छी जमीन है। तो उनके कम्युनिटी के बहुत ही बड़े अच्छे पैरामीटर्स थे। बाद में हमें अपने जो हरियाली क्रांति के बाद जो भी हुआ है वो हम साक्षी है, उसके ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन आज स्थिति ये है कि हम चलते हैं तो लहू निकल जाए ऐसी जमीन हम बंजर जमीन बना चुके हैं। और हमने सोचा कि उसके लिए हमें कुछ काम करना चाहिए, तो मैं थोड़ी एक्शन की बात करता हूँ। परंपरा की बात की, ट्रेडिशनल नॉलेज क्या है किसान में वो बात की, लेकिन एक्शन में क्या कुछ होना चाहिए। तो एक्शन में हम अभी 3 डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में काम कर रहे हैं, राजकोट, जामनगर और महिसागर। तीनों डिस्ट्रिक्ट में 5000 से भी ज्यादा किसान हमसे जुड़े हैं, फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप और हिल फार्मर स्कूल के जरिए। और सभी फंडिंग एजेंसियों ने हमें कमिट किया है कि नेचुरल फार्मिंग करके या तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के जरिए हम किसान की आवक दोगुनी करेंगे, न कि हम केमिकल फर्टिलाइजर या तो केमिकल पेस्टिसाइड का यूज करेंगे। 5000 किसानों का तीनों क्लस्टर में हमने सॉइल टेस्टिंग करवाया है। और डिजिटल डिवाइस तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो 5 सेकंड में ही रिजल्ट दे देती है, एक्यूरेसी अच्छी है, हमने काफी रिसर्च किया है मार्केट में। और 5 सेकंड में प्रिंट निकल के हम किसान को दे सकते हैं। न तो उनको सैंपल कलेक्ट करना है, न सैंपल कलेक्ट करके ब्लॉक में या तो डिस्ट्रिक्ट में जाना है, कुछ नहीं। हम उनके खेत पे चले जाते हैं और 5 ही सेकंड में 7 पैरामीटर्स को हम चेक कर सकते हैं कि आपकी सॉइल हेल्थ क्या है। और ऑर्गेनिक कार्बन पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। केमिकल
थ्रू भी हमने एक एस्टेब्लिश की है सॉइल लेबोरेटरी, और वहाँ भी हम दोनों तरीके से करते हैं। तो एक्यूरेसी किसमें कितनी है वो हम टेस्ट करते हैं। तो 5000 किसानों का डेटा 2 साल से हमारे पास है, और 5 साल तक ये करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, और बाद में सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट का काम साथ में हमने शुरू किया है। सब किसान के वहाँ हमने ड्रम दिया है, या तो बायोगैस्टर दिया है, या तो बायोपेस्टिसाइड यूनिट दिया है, जो हमने कारखाना बोलते हैं हम, कि भाई ये कारखाना है, छोटा बड़ा सब तरीके के कारखाने हमने देकर रखे हैं किसानों को। और जब कारखाना सुनता है तो लोग देखने के लिए आते हैं तो ये कैसा कारखाना है। तो 200 लीटर का ड्रम है, या तो बड़ा बायोगैस्टर है, वो रेडीमेड जीवामृत देता है। छोटे जो गैरबा होता है, ड्रम होता है, उसमें बनाना पड़ता है, 8 दिन में बनता है। तो 5000 किसानों पे प्रयोग अभी चल रहा है। मार्केट के साथ भी हमने जोड़ा है कि जो किसान की सॉइल हेल्थ अच्छी है, ऑर्गेनिक कार्बन अच्छा है, उनको हम प्रमोट करेंगे मार्केट के लिए। ये हम कंपटीशन बोर्ड में लेकर गए हैं कि जो किसान की सॉइल हेल्थ अच्छी है उनको हम प्रमोट करेंगे। और उसके बीच में हमने कंपटीशन रखी है कि 50 गांव में कौन से किसान की हर एक गांव में सॉइल हेल्थ अच्छी है। सॉइल हेल्थ में ऑर्गेनिक कार्बन पे हमने फोकस ज़्यादा किया है। आगे हम चाहते हैं कि सॉइल लेबोरेटरी हर एक गांव में या तो 5 गांव के बीच में एक सेटअप हो, क्योंकि उसके बिना नहीं चलेगा, केवल बातों से नहीं चलेगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने पड़ेगा। कंज्यूमर अवेयरनेस हम बड़े पैमाने पे करते हैं कि आप जो भी खा रहे हैं वो सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, उस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। और महिलाओं को हमने सॉइल हेल्थ के साथ जोड़ा है, परिणाम अच्छा मिला है। और महिलाओं को जोड़ने से जो मूवमेंट की गति थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाई है। तो हमारी ट्रेडिशन क्या है, इश्यू क्या है, बाद में कैसा हमने सेटअप किया है, क्या हम प्रयोग कर रहे हैं, और वो डेटाबेस के जरिए हम किस तरीके से कंपटीशन मोड में किसानों को प्रमोट कर रहे हैं, वो बात मैंने आपसे की। थैंक यू। थैंक यू सुमन भाई। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेती हुई सिद्धार्थ भाई एक अलग टॉपिक को थोड़ा सा लेके आ रहे हैं और कार्बन मार्केट की थोड़ी सी बात करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग और नमस्ते सभी को। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं सेंटर फॉर ग्रोअर सेंट्रिक इको वैल्यू मैकेनिज्म संस्था से आ रहा हूँ। आपका थैंक यू ये पैनल पे इनवाइट करने के लिए। सो जब हम लैंड डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं और एक जो ओवरऑल समस्या जिसके अंदर हम जी रहे हैं वो है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इन दोनों समस्याओं में अगर मैं एक चीज कॉमन देख पा रहा हूं तो वो है कार्बन। क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसे कम करने की जरूरत है ड्रास्टिकली। और लैंड डिग्रेडेशन में अगर वन ऑफ द की पैरामीटर्स आप देखेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन में क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स उसके कॉजेस या रीजंस अलग अलग हैं लैंड डिग्रेडेशन होने के पीछे, मगर एक जो कॉमन पैरामीटर आपको दिखेगा वो है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया है। तो एक जगह आपको कार्बन कम करना है इन द एटमॉस्फेयर, एक जगह जमीन के अंदर आपको कार्बन बढ़ाना है। और जब आप वो कार्बन बढ़ाने की जो भी एक्टिविटीज लेंगे तो ऑटोमेटिक ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्ग टाइम आपकी लैंड बेहतर होती जाएगी। एंड हमें लाइक आई सेड एटमॉस्फेयर से कार्बन कम करना। तो ये एक मेरे लिए कॉमन थ्रेड है। सीजन जो हमारी संस्था है, हम जो काम कर रहे हैं वो है कि एग्रो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन आगे कैसे बढ़ाए, ठीक है। जो आज जो सारे प्रेजेंटर्स ने प्रेजेंट किया वो अलग अलग एक्टिविटीज है विच लीड टू एन एग्रो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन। मगर जो ट्रांजिशन जिसकी हम बात करें कि एकदम खराब जमीन है उसे हमें बेहतर बनानी, अच्छी बनानी है, वो ट्रांजिशन एक रात में होता नहीं है। वो ट्रांजिशन को करने में आपके कम से कम 7-8 साल 10 साल शायद ज्यादा भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस और किस तरह की सिचुएशन है। तो ये जो 10 साल है या 12 साल जो भी है उसमें काफी उतार चढ़ाव आते हैं।
अब मान लीजिए 2 साल अच्छे चले, घास अच्छे से उगने लगी, अब फोर्स क्लाइमेट चेंज भी तो हो रहा है साथ में, तो अचानक ड्राउट अगर आ गया 3 साल, तो जो घास आपने रिवाइव करी है वो शायद वापस मर भी सकती है। किसान अगर कन्वेंशनल केमिकल बेस्ड फार्मिंग कर रहा है, अभी अब आपके साथ ट्रांजिशन मोड में जुड़ गए हैं, 2 साल 3 साल तक जीवामृत डाल रहे हैं, मिक्स क्रॉपिंग कर रहे हैं, इंटर क्रॉपिंग कर रहे हैं, अब सोचिए घर में शादी आ गई या फिर कोई और इकोनॉमिक आफत आ गई, या फिर मैंने जैसे कहा कुछ क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कैटास्ट्रॉफी है, तो सीधा वो ट्रांजिशन उसकी डिले हो जाएगी, राइट। तो हम हमारा जो थीसिस है वो ये है कि क्या हम इकोसिस्टम मार्केट्स, नॉट जस्ट कार्बन मार्केट तो एक हिस्सा है, बट ब्रॉडर इकोसिस्टम मार्केट को क्या हम लेवरेज कर सकते हैं, जिससे ये ट्रांजिशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, जमीन को सुधारने की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कार्बन कम करने की बात कर रहे हैं, क्या उसमें हम कम्युनिटीज को ट्रांजिशन में सपोर्ट करने के लिए एक इंसेंटिव ला सकते हैं कि नहीं। दैट इज वेयर हम इकोसिस्टम मार्केट, और जब मैं इकोसिस्टम मार्केट की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं जैसे कि कार्बन मार्केट जो सबसे फिलहाल मैच्योर्ड है, मगर उसके साथ साथ और भी नए मार्केट्स इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि वाटर क्रेडिट्स, बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट्स, ठीक है, और भी बहुत, उस पर काफी चर्चा की जरूरत है कैसे होंगे, मगर जिसको मैं कहना चाहता हूं कि अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। तो ये एक बात हुई। आज के जो प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि अलग अलग चीजें हो रही, जैसे कि वाड़ी प्रोग्राम हॉर्टिकल्चर के बारे में बात कर रहा है, वाटर सेट प्रोग्राम की बात हो रही है, जो रिच टू वैली की बात कर रहा है रिस्टोरेशन की, मैम ने ग्रासलैंड इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात करी, ठीक है, एंड आई थिंक अरुणा मैम ने जो कुछ चैलेंजेस बताया दैट वर अराउंड फाइनेंसिंग दिस, ठीक है। तो इसके अंदर क्लाइमेट फाइनेंसिंग या कार्बन फाइनेंसिंग एक हिस्सा बन सकता है, ठीक है। जो ब्यूटी है इस डिस्कशन की ये है कि यहां हम कार्बन क्रेडिट्स कमाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि चलो पेड़ उगाते हैं क्योंकि उससे हम कार्बन क्रेडिट कमा पाएंगे, डॉलर्स आएंगे, नहीं, हम बात कर रहे हैं कि अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कम्युनिटी को वाटरशेड रिस्टोरेशन की जरूरत है, कम्युनिटी को वाड़ी की जरूरत है, कम्युनिटी को नेचुरल फार्मिंग की जरूरत है, मगर उसके लिए जो फिनेंस चाहिए वो कहां से? ऑफ कोर्स अलग अलग सोर्सेज है, नरेगा होगा या दूसरी गवर्नमेंट स्कीम्स होगी या फिलैंथ्रोपिक सपोर्ट आएगा, बट एक मार्केट अपॉर्चुनिटी भी है जिसे हम साथ में टैप कर सकते हैं। अब ये मार्केट अपॉर्चुनिटी की जो खूबी ये है कि इसकी 2 चीजें हैं, एक बार अगर आप इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो सीधा 30 साल 20 साल या 40 साल डिपेंडिंग ऑन योर लेंथ ऑफ योर प्रोग्राम आपको एक फाइनेंसिंग चालू रहेगी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। अब ये अगर आप कह सकते हैं कि यार फार्मर लेवल पे तो ये अमाउंट बहुत छोटी है, यस फार्मर लेवल पे ये अमाउंट बहुत छोटी, क्योंकि हम छोटे किसानों की बात करते हैं, एक प्रोग्राम में कम से कम 10,000 12,000 किसान जोड़ने पड़ते हैं, ठीक है। तो एट अ फार्मर लेवल शायद इनकम छोटी, मगर आप अगर ये इनकम को ग्रुप कर दो एंड यूज इट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर दैट सेम प्रोग्राम, तो शायद वो इनकम आपको बड़ी लगेगी, ठीक है। सेकेंडली लाइक मैं कह रहा हूं कि दिस इज नॉट एन इनकम फॉर द फार्मर, दिस इज एन इंसेंटिव फॉर द कम्युनिटी। तो अगर मैंने वाड़ी में प्लांटेशन किए हैं तो अगर ये एडिशनल एक रिवॉर्ड आ रहा है, probably that will incentivize farmer को कि वो वाड़ी को और ज्यादा देर तक बचाए रखे, जो ऑलरेडी बचा तो रहे हैं मगर और ज्यादा रख पाए, ठीक है। जो फार्मर केमिकल्स छोड़ रहे हैं उनको और एक एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा कि चलो जल्दी और जल्दी केमिकल्स कम करें, ठीक है। तो आई लुक एट इट एज अ इंसेंटिव ओवर हियर। जो दूसरी जो खूबी है वो ये है कि कार्बन प्रोजेक्ट्स में मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रिंजेंट रहती है। तो कई जगह पे हमने देखा कि जैसे कि प्लांटेशन का काम हो रहा है एंड वेरी वेल इंटेंडेड वर्क बाय ग्रासरूट ऑर्गेनाइज, मगर उसको मेंटेन नहीं कर पाते फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस, ठीक है। मगर कार्बन प्रोजेक्ट में ये होता है कि मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रिंजेंट रहती है कि आपने कितने पैसे हो रहा है, डेटा कैसे कलेक्ट हो रहा है, एवरी फार्मर का डेटा ऑफ एवरी सिक्वेस्ट्रेशन एंड कार्बन रिमूवल। तो दूसरी चीज है मॉनिटरिंग। हेंस
जो हम ऑलरेडी प्रोग्राम्स कर रहे हैं उसको हम और ज्यादा स्ट्रेंथन कर पाएंगे टू इम्प्लीमेंट देम मच मोर इन अ वेरी रोबस्ट वे. तो I know 10 minutes is very less to talk, but what I want to highlight is this opportunity. So when I look at ये पूरा agroecological transition, I see opportunities in regenerative agriculture या natural farming transition. I see opportunity in grassland restoration where SOC becomes a key factor that you monitor. बायोचार प्रोग्राम जहां पर भी आप इन्वेसिव स्पीशीज जैसे कि प्रोसोपिस जोलीफ्लोरा या लेंटेना कैमेरा रिमूव कर रहे हैं और ग्रासलैंड्स को वापस रिजोन, तो वहां पे बायोचार प्रोग्राम्स हैं. ठीक है, तो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल हियर, बट मेरी एक वार्निंग रहेगी कि दिस इज नॉट एज इजी एज इट सीम्स. वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल होल्डर फार्मर्स, उनके इंटरेस्ट्स को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस. सो आई जस्ट रैप इट अप हियर. Hope for more discussion and questions. Thank you. थैंक यू सो मच. वक्त सही में बहुत छोटा पड़ रहा है इतने सारे इंटरेस्टिंग डिस्कशंस के लिए, और फर्स्ट पैनल थी तो हम शुरू भी थोड़ा लेट कर पाए, पर क्योंकि यहाँ पे सेकंड पैनल होगी और मैं देख रही हूँ कि लोग आना शुरू भी हो गए हैं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले रही. पर मेरा एक लालच रोक नहीं पा रही हूँ. दंगायत जी हु हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ लैंडस्केप को, ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में उनका यहाँ पे बहुत अहम रोल रहा है, वो हमारे साथ हमारे सेशन में है. तो अगर 2 मिनट भी आप कुछ बात कर पाए. नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया. मैं 4 बातें करना चाहूँगा. पहली तो बात ये है कि जो चीज़ें हमारे पास हैं उसका हम सदुपयोग कैसे करें. तो हर छोटे फार्मर हो या मार्जिनल फार्मर हो, इसके पास में 3 चीज़ें आजकल मुझे दिखती हैं. एक तो लाइफ स्टॉक है, मतलब ट्राइबल फार्मर भी जो 1 या 2 गाय रखता है अपने पास या भैंस रखता है. इसके बाद में दूसरा जो है उसका किचन खाना जो बनता है उसका भी जो किचन का वेस्ट तो होता ही होता है, फूड का वेस्ट होता ही होता है. और तीसरा जो है मल त्याग करने के बाद में जो है ह्यूमन वेस्ट भी होता है. ये तीनों वेस्ट ऐसे हैं जो बायोमेथेनेबल वेस्ट जिनको कहता हूँ मैं. इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो 50 बरस से मेच्योर टेक्नोलॉजी है. तो सबसे पहले तो हमें ये करना होगा कि एवरी सिंगल किलो ऑफ बायोमेथेनेबल वेस्ट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू बायोगैस एंड फर्टिलाइजर. ये संकल्प हमें पूरे देश में लेना होगा. अभी गवर्नमेंट एक बड़ा प्रोग्राम चला रही है जिसको हम कहते हैं CBG वाला प्रोग्राम. CBG वाले प्रोग्राम में छोटे लोगों का जो भी इस तरह का वेस्ट है उसको एक छोटी सी कीमत में खरीद कर फिर उसको वैल्यू ऐड करके बड़ी कंपनियां उसमें से बहुत ज्यादा मुनाफा कमाना चाहती हैं. तो जो वेस्ट आपके पास है उसको कन्वर्ट करने के लिए सिंपल बायोगैस प्लांट मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, करना होगा और कम कीमत में लोगों को उपलब्ध कराना होगा. आप मानिए या नहीं मानिए, पर बायोगैस प्लांट अगर सही तरह से आप चलाएं तो उसका पेबैक पीरियड विदाउट सब्सिडी, सब्सिडी के बिना उसका पेबैक पीरियड 18 महीने है. दैट्स ऑल. गैस मिलती है, फर्टिलाइजर मिलती है, फर्टिलाइजर मिलता है, उसको आप फीड कीजिए, आपका जो कार्बन कंटेंट आपका बढ़ जाता है. स्लरी है, स्लरी को भी आप डाल सकते हैं, उससे भी तो आपका कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है. तो पहली तो बात ये मैं आपको कहूंगा, एवरी किलो ऑफ वेस्ट, हर किलो जो वेस्ट है, गोबर है हमारा जो है, मतलब दूसरा ह्यूमन वेस्ट आप ऐड करना चाहें तो करिए, बहुत बढ़िया है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है पानी. पानी का जहां पर सवाल आता है, हम लोग बातें करते हैं पर अभी तक भी हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग अलग अलग तरीके से जो करनी चाहिए उसके लो कॉस्ट सॉल्यूशंस नहीं आए हैं. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं इस क्षेत्र से बहुत लंबे अरसे से जुड़ा हुआ हूं और अब जो है कई तरह के सॉल्यूशंस हम प्रदान कर रहे हैं, पायलट कर रहे हैं. बड़े कम कीमत पर आप पानी को स्टोर कर सकते हैं, आपके जो सब काम में लग सकता है. महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में आजकल पॉन्ड स्कीम चलती है, इरिगेशन पॉन्ड. आपके फार्म के कॉर्नर में आप पानी को इकट्ठा कीजिए, ड्रिप इरिगेशन के साथ में कंबाइन कीजिए. आपको मैं बताता हूँ भाई बहुत बहुत कम पानी में काम हो सकता है. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एनर्जी सब जगह पर जो जरूरत है आप जानते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी जो है वह आज फॉसिल एनर्जी सस्ती है, बनाने में सस्ती. तो लोकल आप बनाइए, डिसेंट्रलाइज्ड वे में, माइक्रो ग्रिड्स, आप किसी भी तरीके की सॉल्यूशन ले लीजिए. वो आप जो है ग्रिड से पावर खरीदते हैं, यूटिलिटी कंपनी से पावर खरीदते हैं, उससे सस्ता होगा. जैसे ही आपके पास में पावर होगा तो उसके जो लाइवलीहुड के इतने ज्यादा आयाम निकलते हैं, प्रोसेसिंग से लेके आपके जो ट्रेनिंग सारी की सारी चीजें आ जाती हैं. चौथी एक चीज जो मैं आपके साथ ऐड करना चाहूंगा कि चारों तरफ आजकल स्वास्थ्य की बात होती है. स्वास्थ्य की बात होती तो आयुष आता है और उसमें मेडिसिनल प्लांट की जरूरत पड़ती है. जिन जिन छोटे छोटे फार्मर से आप बात कर रहे हैं वहां पर मेडिसिनल प्लांट उगाना शुरू कीजिए.
और मेडिसिनल प्लांट अगर उगाएंगे उसके अंदर वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा है अगर उसको प्रोसेसिंग कर सकें। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, मोरिंगा है। मोरिंगा जो हम जिसको कहते हैं यहाँ पर जो है ड्रमस्टिक से जो कुछ भी कहते हैं, वो मोरिंगा जो है उसका कल्टीवेशन कहीं पर भी हो जाता है। तो मोरिंगा को कल्टीवेट कीजिए, इसी तरीके के 4-5 मेडिसिनल प्लांट पिकअप कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ फार्मर की इनकम अपने आप बढ़ेगी, लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा। सो विद दिस आई विल स्टॉप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो थैंक यू माय पैनलिस्ट। एंड जस्ट एक चीज़ जो रैप अप करने के लिए मैं कहना चाहती हूँ, जहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग तरह के बात हुए हैं, मेरा क्वेश्चन आंसर्स लेने का बहुत मन है, पर मुझे लगता है नेक्स्ट पैनल इसी रूम में शायद होना होगा, तो हम उनका टाइम नहीं लेना चाहते। पर एक चीज़ है पक्का कि क्लाइमेट चेंज किस वजह से हो रहा है उसके बारे में चाहे हम कोई भी चर्चा करें, कौन कारणभूत है वो एक अलग प्रश्न है जिसकी चर्चा अलग लेवल पे होती ही रहती है। पर जो सबसे ज़्यादा हकीकत है, वास्तविकता है कि वो हो रहा है और उसका असर हर किसी को अलग अलग तरह से हो रहा है। और अगर हमारे पे पानी गिर रहा है तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि हम छाता नहीं रखेंगे। तो ये क्लाइमेट रेजिलियंसी उस तरह का चीज़ है कि हमारे खेत, हमारे गांव, हमारा ज़मीन, पानी, हमारा को खुद का जीवन अगर उससे असर हो रहा है तो हमें रेजिलियंसी डेवलप करनी ही होगी। और रेनफेड एरियाज उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अलग अलग तरह की अप्रोच की बात है, पर जो की एलिमेंट्स आज बाहर निकल के आ रहे हैं, क्या हम हमारी स्थानिक जो वैरायटी है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको हम कितना संभाल के रख सकते हैं, क्योंकि वो बायोडाइवर्सिटी सालों से, हजारों सालों से जो कुदरत ने वहाँ पे जो प्लांट्स, जो ग्रास सीड्स और जो जीएस से जो डॉक्टर दीपा ने जो बात की कि लोकल ग्रास सीड्स, लोकल वैरायटी, हम बहुत जल्दी उसको खोते चले जा रहे हैं। तो वो वैरायटीज जो वहाँ पे थी, चाहे हमको लग रहा हो कि वो एक समय के लिए प्रोडक्शन कम दे रही है, पर वही वैरायटीज है वो उस जमीन में कुदरत ने उगाई है। तो उन बीजों को संभाल के रखना उससे पहले कि वो हमेशा के लिए चले जाए, वो बहुत ज़रूरी है। वो जब करते हैं, प्रोडक्शन की कमी हो रही है, तो जो समन भाई और जो बायफ के जो एक्सपीरियंसेस है कि कैसे वो ज़मीन को तैयार करें, कैसे आसपास का लाइवलीहुड बिल्ड करें, और जो अभी तंगायत सर ने भी जो बात की, क्या खेत की जो बाउंड्रीज है, जो वाइल्ड स्पीशीज है, उसको अलग अलग तरह से हम वैल्यूएट कर सकते हैं, ताकि जो इनकम कम हो रही है उसको कंपेंसेट कर सके और इन दैट प्रोसेस लैंड को इम्प्रूव कर सके। ये सारे चैलेंजेस हैं, डिफरेंट अप्रोचेस हैं। काफ़ी सारे बात ये पैनलिस्ट के पास है, आप शायद ओवर द ब्रेक यहाँ पे भी वो कर सकते हैं। Thank you very much everyone for joining this panel and looking forward to very interesting discussions over the day.